नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और आज का सेकंड डे है रियासत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से आलमी मुशायरे का प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। और मेरे पीछे की जानिब देख रहे हैं बच्चों की पूरी टीम है। सबों का मुसलसल ये कोशिश कि ये कामयाब प्रोग्राम जो 3 रोज़ा प्रोग्राम चल रहा है 15, 16, 17, आइए आज का दिन जो है मुशायरे का दिन है और अंदर की जानिब चलेंगे और देखेंगे किस तरह से मुशायरे का एहतमाम किया गया। से खौफ खाए हुए तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मैं भूल टांक रहा हूं तुम्हारे जोड़े में। तुम्हारी आंख मसरत से छूती जाती है। न जाने मैं आज क्या बात कहने वाला हूं, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं। तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि हम अब कभी ना बिछड़ेंगे। तुम्हें गुमान कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए-इज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो दिया और मैं उस आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हूँ। मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब मैं कलकत्ता आती हूँ तो कलकत्ता आने की खुशी जो होती है, क्योंकि एकेडमी तो बहुत हैं, मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और बहुत से मैंने एकेडमी के मुशायरे पढ़े हैं। लेकिन आपकी जो बंगाल की जो एकेडमी है वो वाकई जो काम करती है वो सिर्फ कहती ही नहीं है बल्कि काम उनके नज़र आते हैं।
اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے بیچ یہ مصر سے بالا آئی ہیں اور تمام سارے لوگ انڈیا کے باہر سے موجود ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے بے پناہ مسرت کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت مشاعرے میں آج ہم سب شرکت کریں گے. اور ہماری شاعری جو ہمیشہ سے کلکتہ کے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑی محبتیں ملتی ہیں سرزمین سے. تو بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے میں کلکتہ میں بار بار آتی رہوں، اور ایک دعا اور کرتی ہوں کہ اللہ کلکتہ جیسا پورا ہندوستان ہو جائے تاکہ ہمیں کلکتہ آنے کو بھی ملتا رہے اور ایسی خوبصورت محفلوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ جنرل مشاعرے کو زیادہ اٹینڈ کرتی ہیں، کیونکہ آج طرحی مشاعرہ ہے وہ بھی ظاہر میں ہے. کس طرح سے کیا یہ ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جنرل مشاعرے، چونکہ طرحی مشاعرے اب بہت کم ہو گئے ہیں. اور جہاں تک میری میں اپنی ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں. میرا جو قصبہ ہے وہ مکن پور ہے، اور ہمارے وہاں طرحی نشستیں آج بھی ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں طرحی مشاعرے. کم سے کم تمام سارے شعراء سے ایک ہی زمین پہ کئی شعر سننے کو ملتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لوگوں کے خیال آج آپ کو سننے کو ملیں گے. لیکن بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بور مت ہوئیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ لیجیے ہم ایک ہی زمین میں اتنے سارے شعر ابھی ان سے سنیں گے. وہ تو بہت اچھا لگے گا. آج کا مشاعرہ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. شبینہ جی آپ اپنے مشاعرے کے حوالے سے پوری دنیا بھر میں آپ نے سفر کیا ہے. بنگال جب آتی ہے تو بنگال کی دھرتی میں کیا الگ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ الگ یہ کہ بنگال میں جو قدردان ہیں شاعری کے اور جس طرح سے نوازتے ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے سنا جاتا ہے. لیکن بنگال آنے کی اپنی ایک الگ بنگالی جو جادو ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمیں بھی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے بیچ میں آئیں جن کی بے پناہ محبتیں مجھے آج سے نہیں، تقریباً میں 25-30 سال سے کلکتہ کی سرزمین پر میری حاضری ہو رہی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے ہی کلکتہ والوں کی ہمیں محبتیں ملتی رہیں، مجھ میں بھی یہ ہمت بنی رہے تاکہ یہ ہمت مجھے کلکتہ سے ملے. میم ایک ہے کہ دیکھا گیا کہ راحت اندوری صاحب کے ساتھ میں آپ نے کئی سارے مشاعرے پڑھے، کیا جن کو آپ مس کریں گی؟ ان کو تو ہم اتنا زیادہ مس کریں گے کیونکہ کرتے ہیں، ہر روز مس کرتے ہیں جب بھی ہم کہیں مشاعروں میں ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ان کی جو وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی راحت اندوری پیدا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ راحت اندوری کی شاعری مطلب راحت اندوری آج اس دنیا میں ضرور نہیں ہے، لیکن ان کے اشعار، ان کی شاعری، ان کی غزلیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آج جب آپ شبینہ ادیب سے انٹرویو لے رہے ہیں تو راحت صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ راحت صاحب میں سمجھتی ہوں کبھی مر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی یادیں آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور آپ ان کی یادوں کو زندہ کرتے رہیں. جیسے کہ آپ اردو کے حوالے سے برابر شعر وغیرہ پڑھتی ہیں، ابھی جس طریقے سے رستہ دلی میں ہوا وہاں پہ ہندی میں سب بینر وغیرہ لگایا گیا، تو کیا ہندوستان میں اردو اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے ہم بہت بڑی بڑی کبھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی جامہ کم پہنا پاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کسی مشاعرے میں جائیں تو تھوڑا سا احتجاج ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم بھی بہت سی جگہ دیکھتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اردو کا مشاعرہ تو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اردو کا ایک لفظ بھی بینر پہ نہیں ملتا لکھا ہوا. تو یہ ہمارے لیے بے پناہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم اردو کی بات اگر اردو کا مشاعرہ کر رہے ہیں تو ہم صرف محفل مشاعرہ بھی ہم اردو میں نہیں لکھ سکتے. کبھی کبھی آج بہت افسوس ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مشاعرہ تو اردو کا ہے لیکن بینر اردو کا نہیں بنے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے مشاعرے کو بھی بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں اردو کا بینر نہ ملے اور ہم اردو کا مشاعرہ پڑھیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں ہمیں، کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، تمام زبانوں کے جو اچھے لفظ سے ان سے چن کر جو اچھے لفظوں کو لایا گیا ہے وہ ایک اردو زبان بنی ہے. تو اردو زبان اسی لیے اتنی خوبصورت ہے، جو محبتوں کی زبان ہے اس کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ تو اب بینر میں اگر کوئی نام نہیں دے رہا ہے، محفل مشاعرہ تک نہیں لکھ رہا ہے، تو یہ شبینہ ادیب کے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں شبینہ ادیب کو بھی اس مشاعرے میں نہیں جانا چاہیے جہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں
कि उर्दू के नाम पे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं और हम उर्दू से ये भी ना कोशिश करें कि हम उर्दू लिख भी रहे हैं, हमने जो शेर लिखा है वो उर्दू में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ शबीना अदीब कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो भी ज़िम्मेदारान इसके मतलब ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, जो बातें तो करते हैं लेकिन वो अमली जामा नहीं पहना पाते। तो मैं का इनकाद मगरबी बंगाल में कलकत्ता में किया गया है। बहुत सी जगह उर्दू के मुशायरे होते हैं, ऐसे ही मुशायरे होते रहें, आप सब हमें ऐसे ही मिलते रहें। और मैं उर्दू के हवाले से आपने एक बात कही तो मैं मेरा एक गीत है, मैं चाहती हूँ कि उसके मैं एक बंद सुनाती हूँ। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, जिस तरह भी रहे इसको तो यहीं रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है, अपनी तहजीब को संसार में रुसवा ना करो, यानी उर्दू को मिटाने का इरादा ना करो। अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। एक इल्तिजा और करती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उर्दू पढ़ाएं, और हमारी ख़वातीन जब उर्दू पढ़ेंगी तो वो उनका मुआशरा, उनके बच्चे, वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के हर बच्चे को उर्दू की तालीम ज़रूर देंगे। चाहे एक मौलवी रखें अगर स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उर्दू की तालीम ज़रूर हासिल करें। अदब की दुनिया में कहा यह जाता है कि तरही मुशायरा में वही लोग शामिल होते हैं जो शायर होते हैं, जो ओरिजिनल शायर होते हैं। मुतशायरों के लिए काफ़ी दुश्वारी होती है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, जो जब कही गई है ये बात, तो ये भी हकीकत है कि जो तरही मुशायरे होते हैं इसीलिए तरही मुशायरे किए जाते हैं ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी तुकबंदी करने वाले लोग हैं वो भी कोशिश करें, और जब वो कोशिश करेंगे तो फिर वो भी अच्छे शेर कहेंगे। और इसी तरह से जब तरही मुशायरे होंगे तो मैं समझती हूँ कि आज अगर बंगाल की सरजमीन पर ये तरही मुशायरा हो रहा है तो कल और एकेडमीज़ भी इस तरह की तरही मुशायरों को करना चाहिए, उन लोगों को भी। और ये मुशायरा तो मैं समझती हूँ, मेरे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है कि ये तरही मुशायरे में शबीना अदीब की अगर हाज़िरी हो रही है तो मैं अपने तौर पे बहुत खुशी का इजहार करना चाहती हूँ। पहली बार आपकी हाज़िरी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत से मुशायरे तरही पढ़े हैं, और मैंने आपसे कहा कि मैं जिस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है उस सरज़मीन पे आज भी हमारे वहाँ तरही नशिस्तें हुआ करती हैं। ये अलग बात है कि बड़े मुशायरे उतने नहीं होते हैं, छोटा कस्बा है मकनपुर, ज़िला कानपुर का ही कस्बा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ तरही मुशायरे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आहों को सुनता है, आंसुओं की जबान को पढ़ता है। बनामे आमन जमाने में जंग जारी है, किसी भी कत्ल का आप कोई जिम्मेदार नहीं, किसी भी कत्ल का आप कोई जिम्मेदार नहीं। न मैं प्याले में है और न आंख में आंसू, न मैं प्याले में है और न आंख में आंसू। अजब बहार के रुत है कहीं बहार नहीं। न मैं प्याले में है और न आंख में आंसू, न मैं ये इश्तिहारों को उठाया भाई आपने, बड़ा मोहतरम शुअरा का ये मजमा है। न मैं प्याले में है और न आंख में आंसू, न मैं प्याले में है और न आंख में आंसू। अजब बहार के रुत है कहीं बहार नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं उतना अच्छा पढ़ता नहीं हूं जितना अच्छा आप सुनते हैं। बस एक हिजरे के गम का धुआं ही काफी है। जरा साहिर के धुएं से नशा लेते हैं। बस एक हिजरे के गम का वो साहिर जो जिंदगी भर अकेला रहा, आज उसके जबान देते हैं हम खामोशी के जख्मों को। हमारी शायरी लफ्जों का कारोबार नहीं। जबान कहां ढूंढे अब अपने चाँद से चेहरों को दरवाजे,
ये भाई जो लोग कलकत्ता छोड़ के बांग्लादेश और लंदन और अमेरिका में गए हुए हैं, उन सबको नजर कर रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं, मेरे नाम क्या फर्दन फर्दन, कहाँ ढूंढें अब अपने चाँद से चेहरों को दरवाजे, शबे हिजरां बता तेरे शबिस्तानों पे क्या गुजरी। कहाँ ढूंढें अब अपने चाँद से चेहरों को दरवाजे, शबे हिजरां बता तेरे शबिस्तानों पे क्या गुजरी। गुलो बुलबुल पे अब ये इस्तिआरा है, लोग अमन के नाम पे जंग कर रहे हैं। गुलो बुलबुल पे अंगारे गिराने वालों सोचा है। गुलो बुलबुल पे गजल इस्तिआरों में बात करती है, जुल्म को भी वो अपने लहजे में बयान करती है। गुलो बुलबुल पे अंगारे गिराने वालों सोचा है, गुलिस्तान और गुलिस्तान के निगहबान। एक फोटो बनता है यार, एक तस्वीर अच्छी से लो कराओ। खुदाया तुझसे क्या शिकवा हो दुनिया के उजड़ने का। तालियां नहीं, थोड़ा सा एक हाथ की तालियां हम लोग बजाते रहे हैं। कसम खुदा की ताल्लुकात निभाना, मेरी गजल का एक मतलब याद है, मगर सोचो जरा उन फूल सी जानों पे क्या गुजरी। बड़े तो खेलते हैं टैंकों तोपों से दुनिया में, मगर सोचो जरा उन फूल सी जानों पे क्या गुजरी। इन आंखों के अज़ाखानों में गिरिया क्यों नहीं थमता, इन आंखों के अज़ाखानों में गिरिया क्यों नहीं थमता। दिले जिंदा तेरे मरहूम अरमानों पे क्या गुजरी। इन आंखों के अज़ाखानों में गिरिया क्यों नहीं थमता, इन आंखों के अज़ाखानों में गिरिया क्यों नहीं थमता। दिले जिंदा तेरे मरहूम अरमानों पे क्या गुजरी। सुबह अज़ल मैं शाम अबद का अफसाना, औरों के लिए सुबह गुलशन, खुद अपने लिए एक वीराना। तमाम शायरों की तरफ से ये नज़्म पेश कर रहा हूँ। हर अंदेशे से क़ते नजर, कब किसने मुझको पहचाना। आगाज मेरा किसने देखा, अंजाम मेरा किसने जाना। गम किसको मैं कौन आखिर हूँ, मैं पल दो पल का शायर। गम किसको मैं कौन आखिर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। फूलों की महक एहसास मेरे, कलियों की कसक लहजा मेरा। सब्जों की रविश अल्फाज मेरे, शाखों की लचक लहजा मेरा। चिड़ियों की दुआ मेरे नगमे, जुगनू की चमक लहजा मेरा। सावन की झड़ी अशार मेरे, महताब फनक लहजा मेरा। कैसा खामोश मुसव्विर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कैसा खामोश मुसव्विर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। दुनिया को खबर क्या किस धुन में मैं प्यार के नगमे गाता हूँ। जब रूह की चीखें सुनता हूँ, जब दिल का साज उठाता हूँ, मैं अपने जिगर के छालों को लफ्जों में पिरोता जाता हूँ। बन जाता हूँ मैं शोरे जुनूं, मैं रक़्स हवा हो जाता हूँ। कोई गुमनाम मुसाफिर हूँ, मैं पल दो पल का शायर। दुनिया की समझ में आए तो क्या तकलीफ मेरी, तन्हाई मेरी। किन किन अफलाक के तारों को देती है ज़िया बीनाई मेरी। किस किस गुलशन से गुजरी है जख्मों की चमन आराई मेरी। कितने ही बरहना जिस्मों को देती है क़बा चौपाई मेरी। खुद अपने दुखों का ताजिर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। आखिरी बंद नज़्म तमाम होती है। मेरी कोशिश मेरी काविश पलकों पे उठाई जाएगी। दीवारों की जीनत होगी, मेजों पे सजाई जाएगी। तनकीद पे तोली जाएगी, मीज़ान पे लाई जाएगी। लेकिन फिर एक दिन मेरी भी हर बात भुलाई जाएगी। नैयर मैं आज का साहिर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, नैयर जलालपुरी ने मुशायरे की बुनियाद रख दी और आपकी शराफतों ने उसकी कजमज बयानियों को भी कबूल किया। और अब मैं चाहता हूँ कि इसी मुशायरे के दरवाजे पे हम अब पहली दस्तक देते हैं और इसी गुलदान से पहला गुलाब निकाल के जब हम लखनऊ वाले हैं, जब अमीनाबाद से चले थे तो एक शेरवानी मैंने भी बनवाई थी, मगर मेरी वाली जो थी वो तंग हो गई और नहीं आ पाई। तो ये जो सोने के बटन हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुशायरे के गुलदान से पहला गुलाब निकाल के इसके काज में जो है वो आपकी जो तहजीब समाज की शेरवानी है उसके काज में पहला गुलाब जो मैं रखूँ वो आपके गुलदान का हो, और उसका नाम है मुश्ताक अफजल। ये एजाज अफजल का शहर है, एजाज अफजल के चहेते शागिर्दों का शहर है। उन्होंने कभी शेर कहा था, लहू ने क्या तेरे जख्मों को दिलकशी दी है कि हमने जख्म भी खाए हैं, दाद भी दी है।
اعزاز افضل کے اس شعر کے سائے میں آواز دے رہا ہوں مشتاق افضل کو. نام میں نے لیا, تالیوں سے استقبال. شکریہ. ترہی غزل سے پہلے ایک ترہی قطع ملازم فرما لیں, اجازت ہے؟ عرض کیا ہے کہ وہ مطرح ہے کہ دل زندہ تیرے مرحوم مرمانوں پہ کیا گزری. اسی طرح پہ قطع ملازہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ مکانوں پر, مساجد پر, شفا خانوں پہ کیا گزری. مکانوں پر, مساجد پر, شفا خانوں پہ کیا گزری. یہ ظالم کے سبب مظلوم انسانوں پہ کیا گزری. یہ ظالم کے سبب مظلوم انسانوں پہ کیا گزری. کوئی ہے مصلحت تیری وگرنہ جانتا ہے تو مصیبت میں فلسطینی مسلمانوں پہ کیا گزری. مصیبت میں فلسطینی مسلمانوں پہ کیا گزری. میں نے تینوں طرح میں تو کلام کہا ہے, مگر ایک سناؤں گا مہمان سے. عرض کیا ہے کہ خاموش کیا رہیں گے, طرح ہے خاموش کیا رہیں گے زمانے کے ڈر سے ہم. اس سے مطلب نظر فرمائیں کہ ڈرتے نہیں ہیں اہل شرارت کے سر سے ہم. ڈرتے نہیں ہیں اہل شرارت کے سر سے ہم. واقف ہیں ہر محاذ کے زیر و زبر سے ہم. واقف ہے ہر محاذ کے زیر و زبر سے ہم. جو وقت آ گیا تو یہ بازو ہے کس لیے. جو وقت آ گیا تو یہ بازو ہے کس لیے. نکلے ہیں مارکے پہ نہتے ہی گھر سے ہم. نکلے ہیں مارکے پہ نہتے ہی گھر سے ہم. داغے غم حیات ہمارے لیے بہت, داغے غم حیات ہمارے لیے بہت. لیتے نہیں ہیں بھی طلوع سحر